Welcome, students. In today's lecture, we are going to start the explanation of the essay on travel by train written by J.B. Priestley. So, On Travel by Train is a very light-hearted and humorous essay written by J.B. Priestley, and the author talks about his experiences on a railway journey. यहाँ ऑथर जो हैं बहुत लाइट हार्टेड मूड में उन्होंने ऐसे लिखा है, बहुत सिंपल ऐसे है और वो हमें अपनी रेल यात्रा के समय हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं. He tells the reader about different kinds of co-passengers that we meet while we are traveling from train. Okay, so now let us start the essay. Remove an Englishman from his hearth and home, his center of corporal life, and he becomes a very different creature, one capable of sudden furies and roaring passions, a deep sea of strong emotions, churning beneath his frozen exterior. I can pass at all times for a quiet, neighborly fellow, yet I have sat more than once in a railway carriage with black murder in my heart. So, in the beginning of the essay, author tells us that when an English person or Englishman travels or when he is away from his home, he becomes a very different person because when he travels, he is out of his comfort zone. Okay, so he starts to become angry or he starts to become furious at very small or petty things. Okay, then he talks about himself. He says that although I'm a very quiet and friendly person, but whenever I travel, I become a very different person with so much of anger and fury. ऑथर क्या कह रहे हैं कि जब किसी इंग्लिश पर्सन को अगर आप ट्रैवल करने के लिए जब वो ट्रैवल करते हैं या अपने घर से बाहर होते हैं तो वो पूरी तरह से बदल जाते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, इसलिए हर एक छोटी छोटी बात पे उन्हें गुस्सा आने लगता है. वो कहते हैं कि मैं भी बहुत फ्रेंडली पर्सन हूँ, ऑथर खुद के बारे में कह रहे हैं, बट जब भी ट्रैवल वो करते हैं तो वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं. ओके, रिमूव एन इंग्लिश मैन फ्रॉम हिज हर्थ. हर्थ कहते हैं फायर प्लेस को. ये जो ठंडे देश होते हैं वहाँ हर किसी के घर में आग जलाने की एक जगह होती है जिसको फायर प्लेस कहते हैं, घर को गर्म रखने के लिए. ओके, रिमूव, रिमूव यानी हटाना. एन इंग्लिश मैन फ्रॉम हिज हर्थ एंड होम, हिज सेंटर ऑफ कॉर्पोरल लाइफ. कॉर्पोरल लाइफ मीन्स मटेरियल लाइफ, जो भौतिक शरीर जो उनका है. ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंग्लिशमैन के लिए जो उनका सेंटर है जो उनकी लाइफ का, वो उनका घर और उनका फायर प्लेस ही होता है. वो वहाँ रहना ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और जब आप उनको वहाँ से रिमूव करते हैं, ही बिकम अ वेरी डिफरेंट creature. He says that when an English person is away from his fireplace or home, which is the center of his material life, that means his home and his fireplace is the most important part of his life. Okay, and when you remove him from his home, he becomes a very different person. Creature means person, एक अलग ही प्राणी बन जाता है वो. ठीक है, one capable of sudden furies and roaring passions, a deep sea of strong emotions churning beneath his frozen exterior. He says that English person starts to show sudden anger. Sudden furies means anger, गुस्सा. ठीक है, sudden means अचानक. And roaring passions. Roaring means some noisy. Okay, पैशन होती है यहाँ फीलिंग्स के लिए है. ठीक है, अ डीप सी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक समुद्र जो रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस का. चर्निंग बीनीथ हिज फ्रोजन एक्सटीरियर. फ्रोजन यानी जमा हुआ, एक्सटीरियर यानी जो बाहर से उसकी अपीयरेंस है, यानी कि जो बाहर से आपको लगता है कि एकदम फ्रोज़न काइंड पर्सन है, जो कि जिसमें किसी तरह के इमोशंस या फीलिंग्स नहीं हो, जो देखने में ऐसा लगता है, उसके अंदर भी आपको एक डीप सी दिखने लगता है. किसका? इमोशन का, फीलिंग्स का, जो कि चर्न करता रहता है. चर्निंग यानी ब्लेंडिंग टाइप्स, चर्न करना यानी घूमता रहता है. He says that
he starts to show some sudden anger and some noisy outburst of his intense feelings and emotions. Okay, he starts to show his anger and his passionate feelings whenever he travels. ओके जब वो ट्रैवल करता है तो उसके अंदर जो दबी हुई फीलिंग्स और इमोशंस गुस्सा है वो सब बाहर आने लगता है. ओके and he starts to show a deep sea of strong emotions that he keeps under his frozen outer appearance. जो अपनी बाहर से जो अपने आप को वो फ्रोज़न एक्सटीरियर दिखाता है, एक्सटीरियर यानी बाहरी रूप, फ्रोज़न यानी जमा हुआ होना. जमा हुआ इसलिए आया है जो बिल्कुल भी फीलिंग्स या इमोशंस शो ना करे उसके लिए फ्रोज़न आया है. ठीक है. So he starts to show his deep sea of strong feelings and emotions that he keeps under his frozen outer appearance. Okay, he starts to show a sea of emotions. sea यानी समुद्र, भावनाओं का समुद्र. ठीक है. that he keeps within and never shows to anybody. जो वो कभी भी जाहिर नहीं करता है, वो फीलिंग्स भी वो एक्सप्रेस करने लगता है, गुस्सा दिखाने लगता है. ठीक है. I can pass at all times for a quiet neighborly fellow, yet I have sat more than once in a railway carriage with black murder in my heart. Now he says that next he talks about himself. Okay, अब वो रीडर को ऑथर जो है अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं. He says that at all times he is a very quiet, shant, okay, and friendly person. Neighborly means friendly, you can say. So he says that at all times I am a very quiet and friendly person. Okay, but yet whenever he travels in a railway carriage, he becomes a very different person. His thoughts changes and he becomes a person with ill thoughts. Okay, ट्रैवल करते वक्त उनकी फीलिंग्स और जो उनकी जो थॉट्स हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं. With black murder in my heart. Black murder in my heart means having ill thoughts. Ill thoughts means बुरे विचार अपने दिल में रखते हुए वो ट्रैवल करता है. At the mere sight of some probably inoffensive fellow passenger, my whole being will be invaded by a million devils of wrath, and I could do such bitter business as that they would quack to look on. Now, in these lines, he says that when he travels, he becomes oversensitive. कि जब वो ट्रैवल करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं. ही स्टार्ट्स टू शो एंगर ऑन सम इनऑफेंसिव मीन्स समवन हार्मलेस, जिनसे आपको कोई तरह का नुकसान नहीं है, इनऑफेंसिव. ओके, सो ही स्टार्ट्स टू शो एंगर ऑन सम offensive fellow passengers and he starts to show anger without any reason. वो बिना किसी बात पे गुस्सा होने लगते हैं अपने ऐसे फेलो पैसेंजर्स पे जो कि बिल्कुल हार्मलेस है, जिनसे उनको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ एट द मियर साइट ऑफ some probably inoffensive fellow passenger, okay, my whole being will be invaded by a million devils of wrath and I could do such a bitter business as the day would quack to look on. Now the author uses a reference from William Shakespeare's फेमस ट्रेजेडी हैमलेट. यहाँ इन लाइन्स में जो है वो शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है हैमलेट, उससे एक लाइन ले के उन्होंने रेफरेंस दिया है वेयर हैमलेट सेज दैट आई कुड डू सच बिटर बिजनेस एज द डे वुड क्वैक टू लुक ऑन. इन दीज लाइन हैमलेट इज़ हैविंग थॉट्स ऑफ मर्डर. ओके, इन लाइन्स में हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ट्रेजेडी, उसमें वो वहाँ पर मर्डर करने की प्लान कर रहे हैं. Author is saying that I feel the same as Hamlet when I travel by train. ऑथर के कहने का मतलब ये है कि वो हैमलेट की जैसे ही उनमें भी विचार आने लगते हैं, यानी इल थॉट्स आने लगते हैं जब भी वो ट्रैवल करते हैं. दैट मीन्स आई टू हैव सम विकेड एंड इल थॉट्स लाइक मर्डरिंग समवन, यानी ऐसी थॉट्स आती है जैसे किसी का मर्डर करते हैं. ओके, नाउ द ऑथर is going to give you some detail about different kinds of passengers that we meet on a railway journey. Okay, so there is one type of traveler that never fails to rouse my quick hatred. Now first he tells us about first type of traveler that he hates so much. Okay,
वो कहते हैं कि पहले टाइप का ट्रैवलर कौन है जिससे वो बहुत ज़्यादा ही नफरत, हेट्रेड मीन्स नफरत करते हैं. शी इज़ अ लार्ज मिडल एज्ड वुमन with a rasping voice and a face of brass. So first he tells us about the first type of traveler, and that first type of traveler is a big, a huge, large means big and middle aged. Middle aged means around 40 years के around जो है. Okay, middle aged woman. जो पहली ट्रैवलर कौन है, एक बड़ी मिडिल एज की महिला है. एंड शी हैज़ रेस्पिंग वॉइस. रेस्पिंग यू कैन से हार्श वॉइस, यानी कर्कश जो आवाज़ होती है ना, उसे कहते हैं रेस्पिंग वॉइस. एंड अ फेस ऑफ ब्रास. फेस ऑफ ब्रास यू कैन से समवन हु इज़ वेरी रूड एंड शेमलेस. ओके, ब्रास की जैसा फेस होना, यानी कि जो बहुत रूड और शेमलेस होते हैं उन लोगों के लिए यूज़ होता है. ओके, above all things, she loves to invade smoking compartments that are already comfortably filled with a quiet company of smokers. She will come bustling in, shouting over her shoulder at her last victim, a prostrate porter, and laden with packages of all maddening shapes and sizes. She will glare defiantly about her until some unfortunate has given up his seat. So, author says that above all things, she loves to invade. Invade होना है यानी कि ज़बरदस्ती घुसना कहीं पर, जैसे कि she loves to rush or enter forcefully in smoking compartments. So in foreign countries there are separate compartments for smoking in trains. Okay, ट्रेन में स्मोकिंग के लिए अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं बाहर दूसरे देशों में. So she invades in these compartments that are comfortably filled with क्वाइट कंपनी ऑफ स्मोकर्स. यहाँ पहले बहुत ही शांत स्मोकर्स यानी स्मोकिंग करने वाले लोग पहले जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनके कंपार्टमेंट में ये जो महिला है वो घुस आती हैं ज़बरदस्ती. ठीक है. एंड शी विल कम बस्लिंग इन, शाउटिंग ओवर हर शोल्डर एट हर लास्ट विक्टिम, अ प्रोस्ट्रेट पोर्टर. पोर्टर होता है कुली. ओके, विक्टिम यानी उसका शिकार. किसका शिकार? महिला का. सो ही सेज दैट शी एंटर्स बसलिंग यानी बहुत ही जल्दबाजी में और नॉइज़ के साथ घुसना. ठीक है, बसलिंग मीन्स आवाज़ करते हुए और बहुत जल्दबाजी में घुसना. सो शी एंटर्स बसलिंग इन द स्मोकिंग कंपार्टमेंट. ओके, शाउटिंग ओवर हर शोल्डर एट हर लास्ट विक्टिम. और वो चिल्ला भी रही है. शी इज शाउटिंग ओवर हर लास्ट विक्टिम. विक्टिम मीन शिकार. एंड हु इज हर विक्टिम? अ प्रोस्ट्रेट पोर्टर. प्रोस्ट्रेट यू कैन से हेल्पलेस, बेचारा कोई दुखी या दयनीय हालत में जो कुली है वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है. ओके, एंड लेडन विद पैकेजेस ऑफ ऑल मैडनिंग शेप्स एंड साइजेस. एंड हर पोर्टर, उसका जो कुली है, इज़ लोडेड विद पैकेजेस ऑफ डिफरेंट इरिटेटिंग शेप्स एंड साइजेस. वो कुली जो है बहुत अलग अलग तरह की शेप और साइजेस में जो वो महिला कैरी कर रही है सामान अपने, उसको लिए हुए होता है. ओके, she will glare defiantly about her until some unfortunate has given up his seat. And she will glare means stare यानी घूरना, aggressively यानी गुस्से में. So she will stare aggressively about her to make someone leave his seat. वो इस तरह से घूरती है कि कोई ना कोई बेचारा अपनी सीट को छोड़ ही देता है. ठीक है. She is often accompanied by some sort of contemptible whining cur that is only 1 degree less offensive than its mistress. Mistress means मालकिन. Okay, कर एक तरह की डॉग ब्रीड होती है, लो क्वालिटी की. ठीक है. whining यानी always crying. So she often accompanies by some sort of contemptible होता है घृणित. Okay, he says that she always carries a whining cur. whining होता है crying यानी कि हमेशा रोने वाला. कर मीन्स अ लो ब्रीड ऑफ डॉग. एक लो ब्रीड का डॉग होता है जिसको कर बोलते हैं. ठीक है. शी ऑलवेज कैरीज अ वाइनिंग कर दैट इज जस्ट अ लिटिल बिट लेस ऑफेंसिव दैन इट्स मिस्ट्रेस. कि वो अपनी मालकिन से बस थोड़ा सा ही कम ऑफेंसिव होता है. ऑफेंसिव यानी अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना लगे, रूड और तुनक मिजाज जो होते हैं. ठीक है. herself from the moment that she has wedged herself in
There will be no more peace in the carriage, but simmering hatred, and everywhere dark looks and muttered threats. But everyone knows her. Courtesy and modesty perished in the world of travel on the day when she took her first journey. But it will not be long before she is in hourly danger of extinction, for there are strong men in our midst. So he says that the moment that she enters forcefully in the carriage, कि जैसे ही वो महिला प्रवेश करती है, there will be no more peace. वहाँ किसी तरह की भी शांति अब नहीं रहेगी. ओके, इन द कैरिएज यानी रेलवे का जो डब्बा है उसके लिए आया है. But simmering hatred and everywhere dark look and muttered threats. And there will be only gently boiling hatred, धीरे धीरे उबलती हुई, जैसे होता है ना अंदर ही अंदर नफरत दिखाना, ठीक है, hatred, okay. And everywhere dark looks and there will be only evil looks, बुरी नज़र से देखना, and threats everywhere, हर जगह यूँ धमकियाँ सी, जो threat यानी धमकी देना, ओके, हर तरफ बस यही दिखाई देगा जैसे ही वो महिला प्रवेश करती है. Courtesy and modesty perished in the world of the travel on the day when she took her first journey. And this lady does not have any courtesy, यानी कि politeness, okay, जिसको कहते हैं politely, प्यार से या बहुत ही आदर के साथ बोलना, और decency यानी manners उसमें बिल्कुल भी नहीं है. Courtesy and modesty perished यानी गायब हो जाना in the world of travel on the day when she took her first journey. That means this lady does not have any politeness or decency in her behavior. Okay, so the author says that when she took her first journey, politeness and modesty perished means gayab ho jana from the world of travel. Okay, he says that she is very cruel, rude and aggressive in her behavior, and her company is not at all pleasant. Okay, बहुत ही rude टाइप की महिला है, cruel और aggressive है behavior में, और उसकी कंपनी बिल्कुल भी अच्छी लगने लायक नहीं है. But it will not be long before she is in hourly danger of extinction. Extinction means विलुप्त हो जाना, for there are strong men in our midst. बट सून शी विल बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. बहुत जल्द ही इस तरह की जो महिलाएं हैं, इस तरह के जो पैसेंजर्स हैं, वो विलुप्त हो जाएंगे, बिकॉज हमारे बीच उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन अपने बीच में हम लोग पाते हैं. तो इस तरह की जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत जल्द ही मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनसे भी बढ़कर कुछ लोग मिल जाएंगे आपको पैसेंजर्स के रूप में. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैवलर्स that are not so offensive as the above, which combines all the bad qualities but still annoying in a varying degree to most of us. And these others, I will enumerate one or two of the commonest. So now the author tells us about other types of railway travelers. He says that there are some type of railway travelers that are not so rude and unpleasant as the above mentioned women. अब वो कुछ और यात्रियों के बारे में हमें बता रहे हैं, अलग टाइप के, जो कि इस महिला की तरह इतने ज़्यादा रूड और ऑफेंसिव नहीं हैं, ठीक है. विच कम्बाइंस ऑल द बैड क्वालिटीज़. ही सेज दैट दे कम्बाइन ऑल द बैड क्वालिटीज़ बट still annoying in a varying degree to most of us. But the intensity of their annoyance means वो जो चिड़ उनसे होती है कि वो कितना आपको इरिटेट करते हैं, उसकी जो डिग्री है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो वैरी करती है, यानी कि अलग अलग इंटेंसिटी तक होती है, ठीक है. ही सेज दैट अलग तरह के दूसरे ट्रैवलर्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैवलर्स और भी होते हैं, बट वो उस महिला के जितने ऑफेंसिव नहीं होते. हालांकि उनमें हर तरह की बुरी क्वालिटीज़ पाई जाती है, बट स्टिल दे आर annoying in a varying degree to most of us, कि किसी ना किसी हद तक वो हम लोगों को annoy यानी कि irritate ज़रूर करते हैं. ओके, and of these I will enumerate one or two of the commonest. और इनमें से मैं आपको एक दो जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है उनके बारे में वो डिटेल देने आपको जा रहे हैं. ही इज़ गोइंग टू गिव डिटेल ऑफ वन और टू ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज पैसेंजर्स. ओके, फर्स्ट देयर आर दोज हु when they would go on a journey take all their odd chattels and household utensils, parcel them up in brown paper, disdaining such things as boxes and trunks. Furthermore, when such eccentrics have loaded themselves up with queer shaped package, they will cast about 4 baskets of fruit and bunches of flowers to add to their own and other people's misery. Now, the author says that he is going to name one by one
द कॉमनेस्ट ऑफ दीज रेलवे ट्रैवलर्स, एक एक करके वो इन ट्रैवलर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है ये देखिए आप। फर्स्ट देयर आर दोज हु व्हेन दे वुड गो ऑन ए जर्नी टेक ऑल देयर ओल्ड चैटल्स। चैटल्स इज यू कैन से मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप अपने साथ मूव करके ले जा सकते हैं, यानी हाउस होल्ड आइटम जो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देयर आर दोज हु कैरी ऑन ए जर्नी ऑल देयर एक्स्ट्रा मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, ओके। एंड बिसाइड्स दैट they wrap all these things in brown paper because they never use boxes or trunks. Trunks means जिसको आप संदूक कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग पहली बात तो बहुत सारा सामान कैरी करके चलते हैं और उसको भी वो ब्राउन पेपर में रैप करके चलते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी बॉक्स और संदूक जिसको हम कहते हैं उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। डिसडेनिंग सच थिंग्स एज, डिसडेन यानी घृणा करना, सच थिंग्स एज बॉक्सेज एंड ट्रंक्स, कि इन चीज़ों का तो वो यूज़ ही नहीं करते हैं। फर्दर मोर वैन सच एक्सेंट्रिक्स, एक्सेंट्रिक्स मीन्स पिक्यूलियर पर्सन, यानी कि सनकी या अजीब तरह के लोग, हैव लोडेड देमसेल्फ विद क्वियर शेप्ड, क्वियर मीन्स अजीब तरह की शेप वाले पैकेजेस, दे विल कास्ट अबाउट फॉर fruit basket of fruit and bunches of flower to add to their own and other people's misery. Misery यानी तकलीफ यानी दुख. So furthermore, after having loaded themselves up with the queer shaped packages, queer shaped means अजीब अजीब शेप वाले पैकेजेस, these eccentrics कौन होते हैं? some peculiar अजीब लोग, विचित्र लोग जो होते हैं ना, उसके लिए आया है। they will try to find basket of fruits, they will cast about means try to find out, okay, they will try to find out some basket of fruit and bunches of flowers। इतना सामान लेने के बाद भी ये लोग क्या चीज़ ढूंढते रहते हैं? फूलों की बंचेस और फ्रूट्स की जो बास्केट्स होती है उसके लिए वो सर्च करते रहते हैं। एंड दीज बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स एंड बंचेस ऑफ फ्लावर्स विल इंक्रीज देयर ओन एंड अदर पीपल्स मिजरी। वो कह रहे हैं कि ये जो है वो इनकी जो फ्रूट बास्केट हैं, बंचेस ऑफ फ्लावर्स हैं, ये उनकी खुद की और दूसरे लोगों की भी मिजरी को, उनकी सफरिंग को बढ़ा देते हैं, ओके। देन देयर आर द सिंपल फोक्स हु आर फॉर ever eating and drinking in railway carriages. No sooner are they settled in their seats than they are passing each other tattered sandwiches and mournful scraps of pastry and talking with their mouths full and scattering crumbs over the trouser of fastidious old gentlemen. Now he tells us about one other type of traveler. दूसरी तरह के एक ट्रैवलर के बारे में बता रहे हैं। सो दीज टाइप ऑफ ट्रैवलर्स आर सिंपल फोक, यानी सिंपल पीपल, वो बहुत ही सिंपल तरह के लोग हैं। हु आर फॉर एवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन रेलवे कैरियजेस, they are forever eating and drinking in railway carriages, okay, as soon as they are settled in their seats, they are settled in their seats, they start eating। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। they pass each other some tattered means torn यानी कि कटा फटा हुआ, sandwiches and mournful scraps होते हैं जो बचा खुचा खाना या लेफ्ट ओवर जो रह जाता है, ऑफ पेस्ट्री खाने की जो चीज़ें होती हैं ना, केक जैसा, एंड टॉकिंग विद देयर माउथ्स फुल। सो एज सुन एज दे आर सेटल इन देयर सीट्स दे स्टार्ट eating, they pass each other some torn pieces of sandwiches and some leftover of pastries, okay, and they also start to talk with their mouths full of food। मुंह में खाना इकट्ठा करके वो बोलना भी शुरू कर देते हैं। एंड दे स्टार्ट टू स्कैटरिंग यानी बिखेरना, क्रम्स मीन्स टुकड़े, ओवर द ट्राउजर्स ऑफ फास्टीडियस ओल्ड जेंटलमैन। ट्राउजर्स मीन्स जो पैंट होती है उसके लिए आया है। फास्टीडियस ओल्ड जेंटलमैन, फास्टीडियस यू कैन से जो ओवर नाइस लोग होते हैं ना, तुनक मिजाज, ओके। ओल्ड जेंटलमैन कि वो बोलना शुरू करते हैं खाते वक्त, और साथ ही साथ जो फूड के क्रम्स हैं वो उस जेंटलमैन की ट्राउज़र पे गिराना भी शुरू कर देते हैं। कौन सा जेंटलमैन? जो कि फास्टीडियस है, यानी कि ओवरली नाइस पर्सन, ही इज़ तुनक मिजाज, ओके। एंड दे स्टार्ट टू स्कैटर क्रम्स ऑफ फूड ओवर द ट्राउजर्स ऑफ fastidious old gentleman, okay. Sometimes they will peel and eat bananas with such rapidity that nervous onlookers are compelled to seek another compartment। Sometimes these passengers peel means छीलना, okay, and eat bananas with such speed, rapidity means speed, fast, okay,
They start to peel and eat banana with such speed that nervous onlookers कौन होते हैं? जो देखने वाले लोग हैं आसपास के, ठीक है. सो दे स्टार्ट टू दे आर कंपेल्ड, यानी कि वो मजबूर हो जाते हैं. दे आर कंपेल्ड टू सीक अनदर कंपार्टमेंट, कि उनको इस तरह से खाते हुए देखकर लोग मजबूर होकर वो कंपार्टमेंट ही छोड़कर चले जाते हैं. कंपार्टमेंट यानी रेल का जो डब्बा है उसके लिए आए. Some children do not make good traveling companions, for they will do nothing but whimper or howl throughout a journey, or they will spend at all their time daubing their faces with chocolate or trying to climb out of the window. So in the previous paragraph, the author told us about the two types of travelers. Okay, so first are those who carry a lot of stuff with random stuff with them. पहले पैसेंजर तो उसने बताया जो बहुत सारा सामान अपने साथ कैरी करते हैं. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पैसेंजर आर दोज हु ईट अ लॉट वाइल दे ट्रैवल बाय ट्रेन. और जो दूसरे टाइप के पैसेंजर बताए हैं वो कौन है? जो बहुत ज़्यादा खाना कैरी करते हैं और जर्नी थ्रू आउट द जर्नी वो खाते रहते हैं. ओके, एंड बोथ ऑफ दीज आर अनोइंग एंड वेरी अनप्लेजेंट. दोनों ही तरह के ट्रैवलर्स बहुत ही अनोइंग होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन ऑन द ट्रेन जर्नी. अब वो चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको जर्नी के दौरान मिलते हैं. ही सेज दैट देयर आर सम चिल्ड्रन दैट डू नॉट मेक गुड ट्रैवलिंग कंपेनियंस. He says some children do not make good traveling companions. Companions means साथी. For they will do nothing but whimper and howl. Whimper means cry. Howl यानी चीखना चिल्लाना. Throughout a journey, because they do nothing but they cry and howl. Howl यानी चीखना चिल्लाना. Whimper यानी cry. Okay, throughout the journey. Or they will spend all their time daubing their faces with chocolate. Or they will spend all their time making their faces dirty with chocolate. वो चॉकलेट खाकर अपना मुंह गंदा ही करते रहते हैं थ्रू आउट दी होल जर्नी. और they will try to climb out of the window. खिड़की पर चढ़ते रहते हैं, चॉकलेट खाते रहते हैं, या चीखते हैं या फिर रोते रहते हैं. ओके, एंड द क्रैंक्स आर ऑलवेज विद अस. ही सेज दैट क्रैंक्स किसको कहते हैं? जो सनकी होते हैं उनको क्रैंक्स बोलते हैं. ओके, एंड द क्रैंक्स आर ऑलवेज विद अस. वो बच्चों की बात कर रहे हैं ऑथर. ही सेज दैट क्रैंक्स आर ऑलवेज विद अस बिकॉज on the bleakest day it is who insist on all the windows being open. Bleakest यानी coldest. Okay, he says that because on the coldest day they will insist on all the windows being open. कि सबसे ठंडक भरे वाले दिन ऐसे सन की जो बच्चे हैं वो इंसिस्ट करेंगे कि विंडो को खोल दिया जाए. ओके, बट इन द sultriest season they go about in mortal fear of droughts. सल्ट्रियस्ट होता है हॉटेस्ट सीजन जो होता है ना, गर्मी के दिनों सीजन में. दे विल गो अबाउट इन मोर्टल फियर ऑफ ड्राउट. और ऑन द अदर हैंड इन द हॉटेस्ट सीजन दे विल हैव अ फियर ऑफ द फ्लो ऑफ कोल्ड एयर. ड्राउट्स मीन्स हवा के झोंके, जिसको ठंडी हवा का जो झोंके होते हैं. ही सेज दैट दे विल हैव अ फियर ऑफ अ फ्लो ऑफ कोल्ड एयर एंड दे विल नॉट अलाउ अ विंडो टू बी ओपन. और वो सबसे गर्म दिनों में आपको विंडो को टच करने का भी अलाउ नहीं करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे जो क्रैंक्स होते हैं ना ट्रैवल में, जो ऐसे बच्चे या ऐसे सनकी बच्चे जो इस तरह से ट्रैवलिंग के दौरान बिहेव करते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. वी विल कंटिन्यू अवर ऐसे इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.